Good morning, students. Welcome again to the maths class. How are you all? I hope you all are fine. In the previous video, we have studied about the chapter 1, that is what is long and what is round. I hope you must have understood it. Now, in today's video, we are going to study chapter 2, that is counting in groups. Okay, so in this chapter, we will study how we can count the different types of objects given in a group without counting each one of them. मतलब एक ग्रुप में अगर हमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, हम उन्हें टोटल कैसे बता सकते हैं बिना किसी एक एक चीज़ को अलग अलग गिने हुए हम उन्हें एक टोटल नंबर में कैसे बता सकते हैं. सी, here I have two examples. You will get to know it by these examples very clearly. In the first picture, what are these? You can see these are the cups. The cups are arranged in a pyramidal way or the triangular way. They have arranged the cups. How many rows? Rows means this way, lines. जब कोई चीज़ हम हॉरिजेंटली अरेंज करते हैं, दीज आर कॉल्ड द रोज. जब उन्हीं चीज़ों को हम वर्टिकली ऐसे में स्टैंडिंग वे में अरेंज करते हैं, दीज आर कॉल्ड द कॉलम्स. तो यहाँ पे हमारे पास रोज हैं. हाउ मेनी रोज? वन रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड द फोर्थ वन. First row, in the first row, they have put 4 cups. In the second row, they have put 3 cups. In the third row, they have put 2 cups and finally 1. So, if I ask you how many total cups are there, can you guess the number of cups? So it is very difficult for you to just look at the picture at a glance and then answer how many cups are these. It is very difficult for you unless the things are placed in a proper way, that is, the things are placed equally in a group. For this, you can see the second group. Second group, देखिए, here are some pair of shoes. Now again, we will see how many rows are there. 1, 2, 3. तीन लाइनें हैं ना यहाँ पे. 3 rows are there. So in each row, how many shoes are there? Pair of shoes. 1 pair, 2 pair, 3 pair. 1 pair, 2 pair, 3 pair. 1 pair, 2 pair, 3 pair. That is, in each row they have put 3 pairs of shoes. So now it is very easy for us to count the total number of pair of shoes without actually counting each of them. What we see? First, how many rows? 1, 2, 3. 3 rows, right? And how many shoes in each pair? How many pair of shoes in each line? 3 pairs in one line, 3 pair in second line, 3 pair in the third line. That is, each row has 3 pair of shoes. What we will do? We will multiply 3 by 3. 3 threes are 9. Right. So we have 9 pair of shoes in this group. So each group has, because pair means 2, so each pair has 2 shoes. See, these are 3 pairs of shoes in each row, and the total number of rows are 3. So 3 threes are 9. Now if you want to assure that your answer is right or not, what you can do, you can count it individually also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So now you get to know that your answer is absolutely right. This trick you can use in your exams also. When you will give the exams, you can count it also and you can check your answers also in this way, whether we have given the right answer or not. Okay, let us see some other example also. See, in this way you will understand. Surely you will understand. Okay, what are these? Can you recognize what is this which I have put in groups? कोई बता सकता है क्या चीज़ है? आपने देखी होंगी, हम लूडो खेलते हैं, उसमें ये हम गोटी की तरह यूज़ करते हैं, वो गोट है ये. तो मैंने क्या करा है, मैंने इनको ग्रुप्स में रख दिया है. यू कैन सी हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर. 1, 2, 3 एंड 4. 4 ग्रुप्स आर देयर, राइट. एंड हाउ मेनी गोट्स आर देयर इन वन ग्रुप? देखिए 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. In this way, each group has 4 goats. So what if I ask you how many total goats are there? Can you tell me? Huh? So the way to answer this is, firstly we will count the groups. 1, 2, 3, 4. I have 4 groups. And what we will do, we will write this number in our copy. See, we will write this here.
How many groups are there? 1, 2, 3, 4. We will write it over here. 4. 4. We have 4 groups. Now tell how many goats are there in one group? 1, 2, 3, 4. In 2, we will put the into sign, multiply sign, then we will put 4. Now, to get the answer, what we have to do? We have to say the table of 4. 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 threes are 12, 4 fours are 16. Very good. 16. So in this way, we have get to know about how many goats are there in the total, how many goats are there in all the 4 groups. Okay? So now I hope you have understood this. Now we will move to the second thing which we have done in the copy work we have given. This one. This is the chapter 2, the copy work, which we have already you have done. The first question is counting by twos. आपको twos की काउंटिंग करनी है. ठीक है, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे विच आई हैव शोन ऑलरेडी. सी हियर 2. आपको 2 की काउंटिंग करना है. इसका मतलब होता है आपको 2 का टेबल पढ़ना है, या फिर अगर सिंपल वे में हम कहें, अभी यहाँ पे 2 दिया है तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू कि 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10. अभी यहाँ पे कोई बड़ा नंबर दे दिया हमने, मान लीजिए मैंने दे दिया यहाँ पे 40 आपको दिया हुआ है. अब 40 का टेबल तो हमें नहीं आता कि हम 42 ज़ा 44 ज़ा ऐसे करके पढ़ें. तो हमें क्या करना है, जब भी काउंटिंग बाय टूज होता है तो आप क्या करेंगे, आप दिए हुए नंबर में यू विल ऐड 2 इन द गिवन नंबर. जो भी आपको नंबर दिया है आप उसमें 2 ऐड करेंगे और उसको आगे बढ़ाते रहेंगे. जैसे मैंने 40 में 2 ऐड करा 42, फिर 42 में 2 ऐड करा 44, फिर 2 ऐड करा एंड वी विल मूव ऑन लाइक दिस. अब देखिए, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. एक यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं कोई और नंबर ले रही हूँ. मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया 60. अब मैंने आपको 60 दिया एंड आई एम आस्किंग यू कि इसका आप लिखिए काउंटिंग बाय टूज. आपको 4 प्लेसेस तक इसको काउंटिंग बाय टूज लिखना है. ठीक है, आई हैव टोल्ड यू कि व्हेन इट इज गिवन काउंटिंग बाय टूज यू हैव टू ऐड 2 इन द गिवन नंबर. 60 + 2 61, 62. ओके, अगेन 62 + 2. अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है इन एग्ज़ाम्स, द क्वेश्चन इज़ देयर इन एग्ज़ाम, आपको कन्फ्यूज़न है, आप नहीं बता पा रहे हो, तो आप इसे क्या करोगे, साइड में रफ में लिख के देख लेंगे जल्दी से. 2 + 2 यहाँ पे 4 और ये 6, 64. वैसे भी आप काउंट कर सकते हैं, इट इज़ वेरी इजी. 64 + 2 65, 66. देन 66 + 2 68. ये भी कह सकते हैं कि हम एक लीव करेंगे तो भी हमें आंसर मिल जाएगा काउंटिंग बाय टूज़ में. ठीक है, लेकिन द बेस्ट वे इज़ कि आपको 2 ऐड करते चलना है बस. इसके बाद है हमारा काउंटिंग बाय थ्रीज़. अब आपको यहाँ पे 3 का टेबल पढ़ना है. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15. 3 के साथ तो ये इजी था. अब कोई और नंबर जब हमें मिला है तो हमें ये देखना है कि हमें उसमें 3 ऐड करते चलना है. जैसे यहाँ पे 42 तो मैंने 3 ऐड किया, 45 फिर 3 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया और फिर 3 ऐड करा. आपको बस काउंटिंग बाय थ्रीज में 3 ऐड करना है. उसी तरह से काउंटिंग बाय फाइव्स वी विल सी इन द सेम मैनर. दैट इज़ 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15. 5 का टेबल लिया हमने, दैट मीन्स हमें 5 ऐड करना है. कोई भी नंबर दिया हो, अगर आपको काउंटिंग बाय फाइव्स दिया है तो आपको 5 ऐड करके लिखना है उसमें. आप वो 5 माइंड में भी ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आप कंफ्यूज हैं, इफ़ यू आर लिटिल बिट कंफ्यूज, देन यू कैन ऐड इट ऑन योर कॉपी ऑल्सो. ठीक है, आप चेक कर सकते हैं उसको कॉपी पे ऐड करके. नेक्स्ट थिंग इज फिल इन द बॉक्सेस. द क्वेश्चन इज गिवन. what we have done is here we have just write the table. 7 7 are 49, 9 4 are 36. That's it. That means you should know the tables very properly. Daily I want you to revise the tables daily. At least once you should revise the tables daily. Now the next question is multiply. See, the first multiply, हिंदी में हम बोलते हैं गुणा, इंग्लिश में we called it multiply. Multiply, this is the symbol for multiplication. This is tens ones place. हम स्टार्ट करते हैं वंस टेंस और हंड्रेड से. ठीक है, ये हमारा वंस प्लेस एंड दिस इज द टेंस प्लेस. पहला क्वेश्चन है 8 × 7. 8 का टेबल आप पढ़ेंगे. 8 7 ज़ा 56. तो 6 हमारा आता है. देखिए, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, इफ़ वी आर राइटिंग इन दिस वे 56,
If we are writing 56, so what is tens and what is which one number is the ones at ones place and which number is at tens place? See, 6 is at ones place and 5 is at tens place. सो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे 6 हमारा वंस प्लेस पे है तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे और 5 टेंस प्लेस पे. 8 7 ज़ा 56. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 13 इंटू 3. 3 3 ज़ा हम क्या करते हैं, हम पहले इस नंबर को वंस प्लेस से करते हैं मल्टीप्लाई, मतलब टेबल पढ़ेंगे इसका हम, फिर उसी नंबर को हम टेंस प्लेस से करेंगे मल्टीप्लाई. देखिए मैंने करा 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3. इसको मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ. देखिए ये मैंने लिखा टेंस, ये मैंने लिखा वंस. अब मैंने यहाँ पे लिखा है कोई भी और नंबर मैंने मान लीजिए ले लिया, मैंने मान लीजिए यहाँ पे 12 ज़ा ले लिया, यहाँ मैंने 3 लिख दिया इन दिस वे. ठीक है, अब मैंने आपसे कहा इसका आंसर बताइए, तो आप क्या करेंगे. देखिए मैं समझा रही हूँ यहाँ पे आपको. ये नंबर जो आपका होता है यहाँ पे जो दिया होता है इसको हम पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं. तो 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. ओके, इस तरह से हमें आंसर मिल जाएगा. बिल्कुल इसी तरह हम अपना ये हंड्रेड्स टेंस और वन, जब हमें 3 डिजिट का नंबर दिया होगा, देखिए यहाँ पे हमें 3 डिजिट का नंबर है मेरे पास. ठीक है, अब यहाँ पे 2 1 3 मैंने लिखा, मान लीजिए यहाँ 2 लिखा है मैंने. बिल्कुल इसी मेथड से हम करेंगे, पहले ये वाला नंबर से, उसके बाद ये वाला नंबर, उसके बाद ये वाला. आपको ये एरोज़ नहीं ड्रॉ करनी है, मैं आपको बस बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए. 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. इन द सेम मैनर वी हैव डन दिस सम ऑल्सो. ठीक है, आपको ये सम जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स लेके, आपको उतने ज़्यादा और आते जाएंगे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मैनी इन ईच ग्रुप. हर ग्रुप में कितने चीज़ें हैं. 4 ग्रुप्स ऑफ 5 पेन्स. 4 ग्रुप्स ऑफ 5 पेन्स. 5 पेन के 4 ग्रुप हैं, तो हम क्या करेंगे. 4 5 ज़ा 20. हम क्या करेंगे, इस नंबर को इस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है. आपको अगेन आपको यहाँ फिगर नहीं ड्रॉ करी हुई, लेकिन आपको सेम चीज़ पूछी है. इन्होंने कुछ पेन्स को ग्रुप में रख दिया है, उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि हमारे पास 4 ग्रुप हैं. मान लीजिए कह रहे हैं कि हमारे पास 4 ग्रुप्स हैं. यहाँ पे मैंने ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. ये 4 ग्रुप्स है हमारे पास. अब यहाँ पे इन्होंने मान लीजिए मैंने 4 पेन यहाँ रख दिए, 5 पेन्स आर देयर इन ईच ग्रुप, सो वी हैव पुट 5 पेन्स इन ईच ग्रुप. इस तरह से ये क्वेश्चन है आपका. ठीक है, तो ये फॉर्म इसकी ये भी हो सकती है, फॉर्म उसकी वो भी हो सकती है, भी आपको दोनों तरह से बता रही हूँ मैं. तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ईच ग्रुप हैज़ 5 पेन्स. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ग्रुप काउंट करेंगे 1 2 3 4. 4 इंटू का साइन, कितने ग्रुप हैं, कितने नए पेन्स हैं ईच ग्रुप में. 4 ग्रुप्स हैं, कितने पेन हैं ईच ग्रुप में, 5 लिख लिया. अब 4 का टेबल पढ़ा, 20 इज़ द आंसर. सेम इसी तरह से कराए, जितना ग्रुप है उसे पहले लिखिए, उस ग्रुप में कितनी चीज़ें हैं, एक ग्रुप में कितनी चीज़ें हैं उसे यहाँ पे लिखेंगे और आंसर. सेम वे में हमने बाकी के सम करे हैं. इसके बाद है राइट विदाउट काउंटिंग. जैसे मैंने अभी आपको ग्रुप बताया, इन द वे आई हैव told you already, I have drawn the group. Now in the same way they have given the pictures. See, these are the balls. The balls are kept in particular group. 3 groups are there and each group has 3 balls. 3 groups. How many groups? You will write here groups 1 2 3. 3 groups. How many balls in each group? 3 balls, right. So 3 3s are 9. इस तरह से. Second question. Again count the number of groups. How many groups? 1 2 3. 3 groups. How many triangles? These are the triangles. You have studied in the previous chapter about triangles. How many triangles in one group? 1 2 3 4. 4 triangles. आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि each group has 4 triangles. तो 4 हमने यहाँ लिखा और फिर हम 3 का टेबल पढ़ेंगे. 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12. Now balloons. How many groups? 1 2 3 4 5. 5 groups. And how many balloons in each group? 2. You can see 2 groups. 2 balloons are there in each group. So 5 2s are 10. Now the last question is tick the correct answer. आपको यहाँ पे दिया है, it is given number of teeth in your mouth. आपके मुंह में कितने teeth हैं. नॉर्मली एक अडल्ट में we have 32.
तो अब 40 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते ना किसी के भी, तो यहाँ पे दिया है मोर देन 40, मोर देन का मतलब ज़्यादा, लेस देन 40, लेस देन का मतलब कम। 40 से ज़्यादा है या 40 से कम है? आप में तो भी 32 भी नहीं होंगे, एक अडल्ट में पूरे 32 होते हैं, 32 टीथ्स आर देयर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेस देन पे आप टिक लगा देंगे। नंबर ऑफ सीड्स इन एन ऑरेंज, एक ऑरेंज में, संतरे में कितने बीज होते हैं? क्या 50 से ज़्यादा होते हैं? नहीं हो सकते बिल्कुल, तो हम लगाएंगे लेस देन 50 कि 50 से कम होंगे। फिर है नंबर ऑफ पेंसिल्स इन योर क्लास, हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर इन योर क्लास। अब आप सोचिए जितने, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर आर 39 स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो लाइकवाइज हर स्टूडेंट के पास एटलीस्ट एक पेंसिल तो होगी, किसी किसी के पास तो दो भी होती, लेकिन हम अभी एक कंसिडर करेंगे, विल कंसिडर वन पेंसिल विद वन स्टूडेंट। सो देर आर मोर देन 15 पेंसिल्स, तो हम किस पे टिक करेंगे? मोर देन 15। ओके students, I hope you have understand the whole chapter. Practice the sums and please revise the tables daily. Okay, thank you. Goodbye.